session today. Thank you all for putting your trust in us and helping us grow gradually. Uh, this program, Talk Shop for Faiza, is an effort to broadcast stories of ordinary people with extraordinary journeys. And for today's episode, we have a very young, talented, very charismatic Miss Munal Habib with us. I'm very thankful to her that she has taken out time from her very busy schedule. Manal is known for the creative artwork that she does on the Facebook brochure and flyer which I shared. She runs a Facebook page as well as she runs a YouTube a channel for her craft that she does. In addition to that, she's a homemaker and she's an educationist. So, very warm welcome to you, Manal. Thank you so much for taking our time. Thank you so much, Faiza. Assalamu alaikum, first of all. Thank you to everybody who has supported us by joining in. And thank you so much for a very warm welcome. No, It's a pleasure to be here with you. thank you so much, Manal. Before we come to your professional life, let's talk about your childhood. How was it? Childhood, as everybody has, was very, you can say, कि बड़ा मजा आता था. मुझे हमेशा इस एक बात पे अभी तक छेड़ा जाता है कि तुम जब छोटी थी तो यू यूज्ड टू से कि मैं जाके पहले चीखे मारूं फिर आके ये काम करती हूँ. Nice. So every task that I had to do, I had to scream before it. Acha. And I had a particular point in the stairs where I had to sit, scream, and then come back and do the task that I had to do. तो Acha. अब वही जो है ना ये चीज मेरे बेटे ने मुझसे इनहेरिट की Acha. फ्रॉम द एज ऑफ 6 months to 3.5 years. बहुत चीखें मारी उसने भी. अच्छा. मेरे भी रिकॉर्ड तो है. अच्छा, यानी उसने आपको आपका चाइल्डहुड जो है वो भूलने नहीं दिया. एग्जैक्टली अच्छा. उसने मुझे भूलने नहीं दिया. आई रीलिव माय चाइल्डहुड इन हिम इस तरह Mashallah, से. mashallah, mashallah. So this हाँ. seems like a very wonderful childhood where you had a lot of fun, and you seem like Yes, a a very lot. naughty person. Childhood के हिसाब से. Yes, I was very naughty, but being the eldest child, I had responsibilities and also कि वो you have to be the role model for the younger one. Yes. एक ये भी थोड़ा सा जो था element ये भी था मेरे अंदर कि I have to uh, I don't have to do something जिसकी वजह से ये बात आएगी कि तुमने किया था तो छोटे भी करेंगे या उन्होंने भी किया है. माशाल्लाह. मार कभी नहीं पड़ी. अच्छा, मार कभी नहीं पड़ी. डांट पड़ी है. रातों के नहीं बाबा से. मार मुझे नहीं अच्छा. पड़ी. वाह. हाँ डांट Nice. बहुत पड़ी है Nice. लेकिन मार नहीं पड़ी कभी भी. Oh, this is great. This is great. Yeah. So ये जो the confidence you had, which you gathered from your childhood, did it help you to grow into who you are right now? Yes, Humility that definitely. you had, the brought up that you had, does he have? Exactly. So can you talk about it a little? Faiza, I think if your parents aren't supportive and do not inculcate this confidence in you from the childhood, it becomes very difficult for you to live in a society where people are people do not think of anybody else other than themselves. Hmm. लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस शैटर बहुत हुआ था स्कूल में. उसके बाद कॉलेज में Hmm. आई वॉज नॉट वेरी अबव एवरेज स्टूडेंट. आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. Just like me. और लेकिन बिकॉज ऑफ some people, my class fellows financial status, I sometimes used to feel very inferior. एंड ये बहुत फैक्टर्स थे जिन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत शैटर किया. आई वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश, नॉट एट ऑल. अच्छा. एंड स्टिल आई एम नॉट एन इंग्लिश That is पर्सन. not an issue at all. हाँ लेकिन वो एक चीज होती है ना कि वो इंग्लिश यू नो हाँ, वो नहीं, हमारी सोसाइटी में ये स्टिग्मा बन हाँ जाता है, इसको अंग्रेजी नहीं बन बोलनी है. जाता है. और एग्जैक्टली. इतने प्राइवेट तो स्कूलों वो से भी पढ़ाया. हाँ private, I went to Beacon House, one of the most renowned institutes of that time. Hmm. लेकिन फिर भी वो एक होता है कि एक सब्जेक्ट में आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते. फॉर मी इट वाज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. Hmm. तो उस वजह से जो था व्हेन एवर वी यूज्ड टू हैव गैदरिंग्स एट फ्रेंड्स प्लेस तो थोड़ा सा वो
inferior feel करवाया जाता था और feel होता भी था. लेकिन उस चीज से फिर मैं बाहर निकली थी अपनी यूनिवर्सिटी में आके when I did my masters in zoology from Punjab University. Right. तब इस चीज को मैंने थोड़ा सा ओवरकम किया था because ये सब बहुत जरूरी था. Otherwise I wouldn't have been here where I am right now. अच्छा, नाइस. तो आपने लाइक मास्टर्स किया जियोलॉजी में? जी. माशाल्लाह, नाइस. तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जिस टाइम में आपने ये सब्जेक्ट चूज किया होगा उस टाइम में तो अभी जैसे अब तो ये थोड़ी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज करने चाहिए. बड़े सारे फोरम बन गए हैं कि आप ये पढ़िए, आगे इन चीज़ों का स्कोप है. तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप जियोलॉजी की तरफ जाएं? I wanted to be a doctor. ओके. लेकिन मेरा एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था. आई ट्राइड ट्वाइस फॉर इट. अच्छा. लेकिन क्योंकि मेरा एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, आई स्किप्ड माय स्टडी फॉर 1 year. आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एजुकेटर. आई बेसिकली बिलोंग टू गुजरांवाला. अच्छा. मैंने फिर वहाँ पे ही 1 साल जॉब की. फिर उसके बाद आई लेफ्ट द जॉब. आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन. आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम पंजाब कॉलेज. और उसके बाद आई वाज कंफ्यूज कि अब व्हाट टू डू नाउ. पढ़ूं ना पढ़ूं, क्या करूं, व्हाट विल द फ्यूचर होल्ड फॉर मी. बिकॉज आपको पता है व्हेन यू हैव अ ड्रीम एंड इट इज नॉट फुलफिल्ड तो आप काफी अंदर से डिप्रेस हो जाते हो या आपका कुछ करने का दिल नहीं चाहता. तो इट वाज माय फादर हु फोर्स्ड मी टू गो फॉर मास्टर्स. अच्छा, नाइस. एंड आई उन्होंने मुझ पे पूरी चॉइस छोड़ी थी कि इफ यू वांट टू डू इट, अदरवाइज ना करो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम कर लो. अच्छा, नाइस. And he left the choice of subject entirely upon me. नाइस. So I chose zoology, and because I hated botany, I hated chemistry. Okay. So इसलिए zoology was the choice that I had. So you were a science Or person altogether. yes, yes, Science is super. yes. आपने science. Throughout my studies, I was a science person. Actually, this is an absolutely beautiful, I think, nexus in your life कि आपने sciences पढ़े. उसके बाद आप आपने अपनी उसके मास्टर्स के बाद आपने क्या जॉब्स करी या क्या किया? नहीं, मास्टर्स के बाद मेरी शादी हो गई थी. अच्छा. और उसके बाद तो एटलीस्ट 1.5 साल मैंने कुछ भी नहीं किया. आई जस्ट स्टेड एट होम. फिर आई हैड माय सन. लेकिन a little before having my son I started crafting again. कीड़ा तो मेरे में था since childhood. अच्छा. I had been into card making and scrapbooking. Art lessons का मुझे बहुत शौक होता था स्कूल टाइम पे भी. So I just tried to polish it, work on it more, hone my skills. और फिर जब मेरा बेटा हुआ तो postpartum depression hit me too bad. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप बात Yes. करें. ये 90% जो खवातीन है उनके साथ ये होता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नेवर टॉक्ड अबाउट. Yes. This is very relevant. This is very much there. But ये कोई बातें नहीं की जाती इसके बारे में. तो thank you so बिल्कुल. much for bringing it up. So how did you go? It should be talked about. क्योंकि देखिए फायजा, ये एक ऐसी बात है, everybody has to go through it. Every woman has to go through it. बिल्कुल बिल्कुल. There are very rare chances कि birth के बाद a woman is not going to undergo these changes or these feelings. ये होता ही है. And society does not understand it. ये हमारे में बहुत बड़ा flaw है कि जो औरत होती है उसको ये कहा जाता है कि तुमने कौन सा कोई बड़ा काम कर लिया, तो हमने भी तो किया है, सब करते हैं. True. So but the times have changed now. This thing needs to be realized that a body has undergone many changes. It has brought a life into this world and it is further undergoing many changes. So this thing needs to be addressed seriously. I coped up with the help of my husband and with the help of my craft. Mashallah. I literally used to cry all night. मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्यों रो रही हूँ. हर किसी की छोटी छोटी बात पे मुझे रोना आ जाता था. मुझे समझ नहीं आता था. I wanted to run away, run out of the house, even at midnight. So it was a very difficult time for me. But gradually, जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा अपना recover किया, within a month or two, उसके बाद फिर pace routine एक set हो गई. I started to craft more. I started spending time with my son productively.
माशाल्लाह, एक उसकी भी रूटीन सेट करने में मुझे थोड़ी सी काफी हेल्प हुई थी इस वजह से। बिल्कुल तो माशाल्लाह, मुझे पता होता था कि इसमें कब उठना है, इसका कौन सा काम कब करना है। फिर मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया। नाइस। जब मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया ना, दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर मी। जबरदस्त, ये बहुत खूबसूरत मिलियन डॉलर बात की आपने, ये इतने जबरदस्त अल्फाज हैं। आई विश के जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस चीज से आई सो इंस्पिरेशन विश लें यू। कि अपने आप को, खवातीन का, स्पेशली व्हेन यू हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड यू हैव प्रोफेशनल लाइफ, एंड even if you don't have a professional life, you are a homemaker. So I use the होममेकर, word homemaker, not housewife, because they both are very different. और हमारी सोसाइटी एग्जैक्टली, में आई एंड थिंक दैट इज अनदर जॉब। बीइंग अ होममेकर इज आल्सो अ 24/7 जॉब। एब्सोल्युटली, एंड इट्स अ वेरी टफ वन, जिसमें से हमारी अनफॉर्चुनेटली साउथ ईस्ट एशिया की ब्रैकेट में सोसाइटल प्रेशर और फैमिली प्रेशर मिक्स होके, यानी कंबाइन होके, हमारे ऊपर, हमारी नर्व्स के ऊपर बहुत हैविक प्ले करता है। और बिल्कुल। बहुत सारी टैलेंटेड खवातीन और बहुत सारी इंटेलिजेंट खवातीन सिर्फ इस प्रेशर की वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं, और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, चाहे वो होम मेकर ही हो, वो उस तरह से पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, एग्जैक्टली। पॉजिटिविटी है। These things really suck the beauty out of us. So thank you, यस। Minal, आपने इसका जिक्र किया. So how did you manage all that? आपने आई यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिली देन। yeah, तो you started spending time with yourself, and that brought a positive aspect that helped you manage the time and helped you manage यस, the house. हाँ, तो वो थोड़ा सा मैनेज हो गया था तब। लेकिन एक जो होता था ना कि मैंने अपने लिए, अपनी जात के लिए दिन में 1 घंटा जरूर निकालना है। Mm. आई sometimes chose to read a book. Mm. I listen to music, or I whatever my mood allowed me to do, मैं वो कर लेती थी। उससे So, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाती थी मैं। I got myself rejuvenated by doing these activities. तो ये उन सब लोगों के भी मनाल, आई थिंक मेरे ज़हन में आ रहा है, आपने जैसे भी जिक्र किया कि चूंकि आजकल हम सारे आइसोलेशन में हैं, सोशल लाइफ नहीं है पेंडेमिक की वजह से, और पॉजिटिव रहना एक मुश्किल जॉब बनती जा रही है मुश्किल, सबके लिए। बिल्कुल। तो व्हेन वी, आई थिंक आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यू हैव टू फाइंड सम गेटवे, some outlet Out. to engage Yes. yourself positively. Books can be your friend, or anything that makes you happy or positive, helps you bring Positive. out the creativity in you or positivity in you. बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसान उसको फाइंड आउट करे। तो मिला, Exactly. आपने अपनी ये जो आपने जिक्र किया कि आपने क्राफ्ट का जो है उसके थ्रू अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिविटी की तरफ आप लेके गई, तो इसमें शुरू से ही आप इसको कमर्शियल उसके लिए करी थी, या शुरू में बस आपने सिर्फ एज ए हॉबी ज्वाइन किया, इसको टेकअप किया, ऐसा ऐसा आपको ख्याल आया कि इसको कुछ किया शुरू जा में सकता है? तो इट वाज मोर ऑफ अ हॉबी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू आवर लाइव्स, वी हैड फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टिंग हैंडमेड थिंग्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा, तो 100। व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया, हाँ, एसएमएस चला गया, ईमेल चली गई, बिल्कुल ये बिल्कुल। कर लिया, वो कर लिया, बाजार से महंगा से जोड़ा खरीद के दे दिया। लेकिन जो एक हैंडमेड चीज का एसेंस होता है, जो उसके साथ एक अफेक्शन होती है, प्यार जुड़ा बिल्कुल होता है, किसी की मोहब्बत होती है, बिल्कुल उसका कोई मैच नहीं है। बिल्कुल कोई So मैच। I started making cards and giving them out in the family and friends. And the appreciation I received, उसने मुझे ज़्यादा फिर encourage किया, and then I properly thought of converting into a business. माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये That's how आपको, it all began. तो आपने, आपको अपनी फर्स्ट असाइनमेंट कुछ याद है, जो आपको पहला ऑर्डर मिला हो, किस तरह से मिला Uh, था? मैंने फौरन अपना फेसबुक पे सबसे पहले पेज बनाया था, क्योंकि अच्छा। उन दिनों में फेसबुक बहुत ज़्यादा इन था, इंस्टाग्राम का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते थे। So हम्म। the only platform that I had was Facebook at that time. It ओके was it was in 2014. ओके, तो नाइस। वहां से ही मुझे ऑर्डर्स आए थे। मुझे याद है शुरू शुरू में सिर्फ मुझे कार्ड्स के ऑर्डर्स आया करते थे, हम्म एंड व्हेन आई यूज्ड टू टेल और कोट प्राइसेस, तो आगे से ये मुझे रिस्पॉन्स में सुनने को मिलता था, यू आर वेरी एक्सपेंसिव, यू चार्जिंग अस अ लॉट, हम्म इतने में तो हम इतनी सारी चीजें बाजार से ले लेंगे। तो आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि आई एम pouring my heart out, आई एम पुटिंग इन my time and effort, आई एम पुटिंग इन my mind,
putting in my thinking, and then people are not encouraging me कि आप तो हमें इतना ज़्यादा expensive दे रही हैं। तो ये बहुत टाइम तक मेरे अंदर रहा था, बहुत ज़्यादा देर तक। लेकिन उसके बाद जो मेरा सबसे पहला बड़ा ऑर्डर था, that was of my cousin's wedding cards and the favor boxes। जबरदस्त, जबरदस्त। वो मैंने बनाए थे। तो उसके बाद से जब वो बात होती है ना कि फिर आपका नाम निकलता है, it फ्रॉम becomes the वर्ड word ऑफ of mouth। माउथ, और यहाँ आपकी जो हाँ, फेसबुक के पेजेस पे फीड्स होती हैं, when exactly। people start looking at they can have a look at the quality of the work that you are Yes। offering against the charges that you are charging them, Charging तो for the product। हाँ, तो Yes। वो उनको थोड़ा सा एतमाद डेवलप हो जाता है। हाँ, तो तो मनाल आप, उसके बाद से फिर सॉरी सॉरी सॉरी, हुआ था मेरे। प्लीज बोले। इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताइए नहीं, बताइए बताइए। मैं ये कह रही थी कि उसके बाद से फिर जब लोगों ने हाथ में चीज पकड़ी, दे गॉट एन आइडिया ऑफ द क्वालिटी दैट आई एम गिविंग, तो फिर काफी उनका जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ था। सो इसमें जो आपने जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि कुछ टाइम आपको स्ट्रगल करना पड़ा, फिर उसके बाद आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए अब मेरे ख्याल कुछ भी नहीं करना पड़ता, दे सिंपली गो एंड क्लिक ऑन योर probably website and look at the photos that you have uploaded, वहाँ से ही आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो हाँ जी। जो जो अब आपकी जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो उस जमाने में भी जब जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि लोगों का आइडियोलॉजी बदल चुकी है, उनका ट्रेंड बदल चुका है, ये सब चीज़ें उनको थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती हैं, या उनको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा। तो आप एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि ये फीलिंग क्यों है लोगों में कि जो हम हैंड क्राफ्ट बाय करते हैं वो एक्सपेंसिव होता है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मोस्टली हैंड क्राफ्टेड जो काम होता है वो घर से निकलता है, इट्स नॉट इंडस्ट्री बेस्ड। ओके। तो लोगों को लगता है कि घर के काम में क्या कॉस्ट आ जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा फोल्डिंग कटिंग पेस्टिंग ही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बट वी आर यूटिलाइजिंग आवर स्पेस, we are utilizing our electricity, we are spending our time on it, we are ignoring some other tasks and then spending time on it। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो it adds to the cost in addition to the cost of the material। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे शुरू में इस चीज का कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं था कि when you are working you have to add in the cost of these things as well। मैं सिर्फ अपने मटेरियल की कॉस्ट लगाती थी और उसके ऊपर थोड़ा सा बहुत मिनिमम सा अपना जो मार्जिन था वो रख के तो आगे आई वुड सेल इट। लेकिन अब क्योंकि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी बिजनेस की वुमेन एक्स के थ्रू, तो वहाँ पे फिर आई लर्न दीज थिंग्स के भाई ये चीजें भी इंक्लूड होती हैं, एंड इफ यू आर नॉट एडिंग दीज कॉस्ट देन यू आर गोइंग इन लॉस। बिकॉज आपने जब घर का रेंट पे करना है तो आपने उस चीज की यूटिलाइजेशन का भी रेंट पे करना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपने जब बिजली का बिल देना है, आपने उस चीज को बनाने में जो बिजली इस्तेमाल की है आपने उसका भी बिल अंदर ऐड करना है। तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट अभी भी आने की काफी ज्यादा जरूरत है। देयर इज अ सर्टेन क्लास हु वुडंट क्वेश्चन यू ऑन द प्राइस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, बट देयर आर मेनी पीपल who still question you, and वो तो आपके मुंह पे भी अक्सर कह जाते हैं कि ये तो हम खुद भी बना लेंगे, ये तो हम आप 2000 की दे रही हैं, हम 500 की फलाने आदमी से जाके बनवा लेंगे। तो फिर ठीक है, ओके गो, do not come to us then। if you want a certain product with a good quality but you're not willing to pay the price for it, तो फिर don't come to us। तो मनाल आप जैसे आपने बड़ा जिक्र किया कि लोग जो हैं अभी तक कन्विंस नहीं होते और कुछ लोग हैं जिनको कन्विक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो ये दोनों तरह की पॉकेट्स हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। सो एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर आपको क्या इस वक्त चैलेंजेस नजर आते हैं या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, स्पेशली इन द इंडस्ट्री दैट यू आर डीलिंग विद, जो आपकी क्राफ्ट की इंडस्ट्री है उसमें? आई एम श्योर आपने अपने जो डिफरेंट मैंने देखा फेसबुक पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में जो विमेन एम्पावरमेंट के हैं बिजनेस बिल्कुल उनमें एक्टिव हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस में जाती हैं। तो एक तो ये भी जिक्र करिए कि इन प्लेटफॉर्म्स ने आपको कैसे हेल्प किया है अपने बिजनेस को मार्केट करने में या इसकी निटिग्रिटी समझने में, और दूसरा ये बताइएगा कि आप जो एज ए स्मॉल इंडस्ट्री ओनर, जैसे आप एसएमई घर से ही अपना काम करते हैं, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस नजर आते हैं इसको घर से रन करने के?
चैलेंज जो सबसे बड़ा आता है इज टू मेंटेन योर रूटीन other than doing the household work. Because in this situation of pandemic, और उससे पहले भी maid अगर आपके घर आती भी है तो you have to be with her all the time. Absolutely. You cannot leave her on her own. ठीक है, तो उसके सर पे खड़े होना, खाना पकाना, to feed the family, to take care of the kids, to take care of the husband, and बाहर आना जाना, guests वगैरह ये सब. तो आपको अपना जो schedule है, चलानी, हाँ बिल्कुल. Exactly. तो आपको अपना जो schedule है वो बहुत calculated सा रखना पड़ता है. Sometimes you have to avoid social gatherings just because you have to work, and that is the topmost priority for you at that time. तो एक ये challenge जो है ये काफी अभी भी काफी खवातीन को आता है, including me. फिर sometimes artists को जो बहुत बड़ा challenge आता है that we are sometimes not in a mood to do something. आपकी म्यूज क्रिएटिव म्यूज नहीं आ रही होती. Exactly. वो एक जो ब्लॉक होता है ना, क्रिएटिव ब्लॉक, इट कम, इट डज कम, इट डज कम. और आप कुछ भी कर लो, इट डजंट गो व्हेन इट डजंट वांट टू गो. that the writers block, ऐसे writers को writer block आता है, creative exactly. को ये वाला block आता है, उनको ideas ये crafters block आ जाता है. crafters block आ जाता है, बिल्कुल true. ये एक बहुत बड़ा challenge है, बिल्कुल. हाँ, तो आप कभी कभी होता है कि तबीयत खराब है, you have to deliver orders, and being a one man army, it is really challenging for you. फिर if I talk about myself only, तो फिर I ask my husband to do a certain thing for me. लेकिन वो भी इसलिए मैं कह देती हूँ because everything is being done in front of me. वो एक quality assurance जो मेरे हाथ से चीज गुजर के जाएगी, वो I cannot trust on anybody else. ये अगला बंदा भी यही चीज बना के भेजेगा. A lot of people ask me question कि आप अपनी टीम क्यों नहीं बिल्ड करती? आपके पास काम है, you need time, you need more hands to work with you. तो उसके पीछे सिर्फ एक यही रीजन है कि वो तसल्ली नहीं होती मुझे, क्योंकि जो काम एक मैं करके भेज रही हूँ किसी की तरफ, उसमें मुझे पता है कि कोई फ्लॉ नहीं है. अगर इन केस किसी वजह से कोई फ्लॉ आ जाता है तो आई कैन कंपनसेट और आई कैन टेक द गारंटी इन एनी वे. So these are the challenges that are being faced. और opportunities की अगर बात करें तो yes, different platforms are providing opportunities. They are offering many online courses which are free of cost. For example, वो FemPro है, Connected Women है, हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो मेरा बहुत ज्यादा जो है वो करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं. ट्रेनिंग है उनकी ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के अलावा फिर जब बिजनेस प्रमोशन थ्रेड्स ऑन होते हैं, वो भी एक आपकी जो अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक एक्सपोजर मिल रहा है कि एवरी वुमन हु इज वर्किंग फ्रॉम होम इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट हर बिजनेस इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस और डिस्क्रिप्शन, व्हाटएवर हर मीडियम ऑफ वर्क इज, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो इट हैज हेल्प्ड अ लॉट, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक व्हेन एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे एट होम एंड डज नॉट वांट टू गो आउट. तो ईद पे भी काफी वर्चुअल एग्जीबिशंस हुई थी. आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द एग्जीबिशंस. काफी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई थिंक कि ये एक नया नॉर्मल बन जाएगा. So we have to train ourselves according to this. Absolutely. मिनाल ने बड़ी अच्छी बात की है कि this pandemic is shaping people's ideologies and their way of life and their way of thinking and buying. So online buying जो है वो एक new normal बनता जा रहा है. These virtual meetings and these virtual seminars, these virtual exhibitions, open houses, ये एक new normal बनता जा रहा है. और मुझे तो ये लगता है कि जब pandemic खत्म भी इंशाल्लाह हो जाएगी, तब भी हमारा बहुत सारा जो एक क्लास है और एक बहुत ज़्यादा बिजनेस है, ये ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ कनेक्टेड हो जाएगा. तो टेक्नोलॉजी के बारे में कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है कि वो टेक्नोलॉजी को और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि ये उनके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मिनाल आपने sorry to interrupt, I would like to add that this is the best time to learn a new skill, and this is one skill that if you learn it, it's going to help you for the lifetime. Yes, absolutely. और ये जो लर्निंग है ये माशाल्लाह जैसे मिनाल ने जिक्र किया कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट ख़वातीन के साथ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि मिनाल एग्री करेंगे कि बहुत सपोर्ट मिलती है. और अगर सपोर्ट के साथ साथ आपको बहुत नए आइडियाज़ मिल जाते हैं, आपको नए एवेन्यूज खुल जाते हैं,
तो ये जो लर्निंग है इसको स्टॉप नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मनाल का जो काम करना है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो रेयर है। अब इस टाइम में अगर देखा जाए ये एक रेयर चीज़ है, नॉट एवरीबडी इज डूइंग इट। तो जब आप एक रेयर क्राफ्ट के साथ अटैच्ड हैं, तो आई थिंक ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना, ये आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर सकता है, और ये Exactly. आपके लिए वो एवेन्यूज खोल सकता है जो कि फ्री हैं। मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म्स इनमें आई डोंट थिंक इनके लिए कोई चार्जेस हैं फिलहाल। No, no, no. Everything is free. They're all free. तो मनाल, आपने कभी आपने जिक्र किया कि आपने कोई कोर्स भी किया था, तो Hmm. प्रॉपरली इसको बिजनेस सेंस को डेवलप करने के लिए और अपने क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, सो अभी तक आपका जो जर्नी है, चाहे वो कॉलेज लाइफ का था और या आपका ये प्रोफेशनल लाइफ का है, आपने कोई ऐसे मेंटोर्स जो आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट, जिन्होंने रोल प्ले किया हो, दोज हु हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग हु यू आर राइट नाउ, क्या आज आप उनको कोई उनके बारे में जिक्र करना चाहेंगी, कुछ उनको थैंक यू नोट बोलना चाहेंगी? Yes, definitely. I don't remember everybody's name, but there have been many teachers in my university as well when I was doing my master's who used to tell us about morals and values. Uh, हमारे एफएससी में भी फिजिक्स के एक सर थे जिन्होंने हमें नोट्स देने होते थे, तो उनके ऊपर छोटी छोटी बातें लिखी होती थी, जैसे बा दबा नसीब दे दबे हम्म। नसीब। तो whenever we used to go through the notes, ये बातें फिर आपके अंदर जहन में बैठ जाती हैं। फिर जब आप ने अभी बात की कि जब मैंने बिजनेस ट्रेनिंग ली, yes there were some mentors जिन्होंने हमें इतनी sincere advices दी that they are helping us a lot in the practicality of life, हम्म। not only in business but life as well. जैसे कहना कि आपकी आंखें खोल देती हैं वो बातें, बिल्कुल वैसे they used to train us that way. Here, when you enter into the practical life, I'm also a teacher, by the way. I teach science to grade 8. बिल्कुल, So आई वाज जब कमिंग टू दैट पार्ट। okay, तो या जब आप colleagues के साथ उठते बैठते हो, you learn from them. You एब्सोल्युटली, learn from their negative and positive aspects both. जबरदस्त, जबरदस्त, That is very important. बहुत जबरदस्त। Again, बात वही है कि learning shouldn't stop anywhere, anytime. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने बिनाल बड़ी ज़बरदस्त जिक्र किया है, जो वैल्यूज़ की आपने बात की कि जो पुराने टाइम में मेरे और आप, मैं तो आपसे बहुत पुरानी हूँ, मेरे टाइम में, और आप तो बहुत यंग है। मैं भी, लेकिन मैं भी बहुत नई नहीं हूँ। फिर भी I'm an 80s child. I'm मैं an 80s child. आई एम 70s, तो मैं आपसे बहुत पुरानी हूँ। तो मेरे टाइम में भी एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती थी, जो पेरेंट्स की तरफ से भी होता था, कि हमारे यहाँ पे एक उस्ताद की जो इज्जत थी वो बहुत ज़्यादा थी, हमारे टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा थी। yes, मतलब ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि भाई आप अपने घर में जाके किसी टीचर की शिकायत लगा सकें या कुछ, या हमारे, never. और कभी किसी की क्लास में कोई बेअदबी करने की कोशिश करी जाए, ये इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। तो उन चीज़ों ने हमारे अंदर एक डेप्थ ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया। ये वाकई सही बात है कि अगर कोई हमारे टीचर सख्त भी थे तो भी हमने उनकी इज्जत की, और वो इज्जत आगे से हमारे काम आई। तो I ये बिल्कुल, तो ये जो अदब का सिलसिला है, मैं कभी थोड़े दिन पहले किसी का पढ़ी थी, मुझे अब बिल्कुल याद नहीं किसका कोट है, तो उन्होंने लिखा था कि ज़िंदगी में कामयाब होने का एक फार्मूला ये है कि बहुत ज़्यादा तालीम के साथ थोड़ा सा अदब इंसान करना सीख ले, तो ये उसकी सक्सेस का फार्मूला बन सकता है। तो यंग बच्चे जो हमें देख रहे हैं और हमें बाद में भी ये देखेंगे इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह, उनके लिए थोड़ी सी एडवाइस है कि बीइंग बोल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आजकल के टाइम में बीइंग बोल्ड इज़ ब्यूटीफुल, बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि अब जो टाइम है वो थोड़े से बदल चुके हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, जो हाथ आपको सिखाता है या जो चीज़ आपके ऐसी ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में है जो आपको शेप अप करने में, आपको सीखने में मदद दे रहे हैं, कभी भी उनके साथ कोई ऐसी बात ना करिएगा जिसमें आपको बाद में जाके सॉरी कहना पड़े। तो exactly. ये बिल्कुल, क्योंकि उनकी इज्जत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर के बड़े हैं, दादा दादी हैं, टीचर्स हैं, या बाहर आपको अजनबी लोग मिलते हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, और वो अगर आपकी किसी बात पे आपको कुछ कहते हैं तो सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और उसको एब्जॉर्ब करें। Exactly. तो मिनाल ने जिक्र किया कि क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करना भी एक आर्ट है। Hmm. तो मिनाल, आप बच्चों को टीच करती हैं, यंग माइंड्स के साथ एंगेज होती हैं, आपको क्या ट्रेंड नज़र आता है कि अगर हम
बच्चों को आजकल किसी चीज़ के लिए गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी गाइडेंस को क्रिटिसिज्म में अक्सर कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो जी जी ये चैलेंज आपको भी फेस करना पड़ता होगा। बिल्कुल करना पड़ता है, बिकॉज आजकल जो स्टूडेंट्स की एक सो कॉल्ड क्लास है ना, दैट इज डिपेंडिंग सोली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली। हम्म। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इट इज इतना बच्चों का कसूर नहीं है जितना कि पेरेंट बॉडी का कसूर है, हम्म। बिकॉज दिस इज हाउ दे आर बीइंग फेड एट होम्स। हम्म। कि मतलब if I tell you something about a child what I experienced in my school, so you would say कि what sort of education is being given to children these days. So हम्म। I wouldn't want to quote it, but अगर मैं करूँगी तो वो यही आप समझें indirectly कि he did not have had any respect for school, not for the teachers, for हम्म। anybody. हम्म। और पेरेंट्स इस बात को भूल जाते हैं कि if their child is not respecting the teacher, he is not going to respect his parents as well someday, एब्सोल्युटली। and he is not going पढ़ी to लिखी respect सी बात है। himself. ये तो बहुत पढ़ी लिखी सी एक बात है। इट्स हाँ, प्रूवन फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बिल्कुल रिस्पेक्ट एक बड़ी फर्क चीज है, और ब्रॉटअप का इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है प्ले करने। बहुत जैसे ज्यादा, आप बहुत ज्यादा। बच्चों को ब्रिंग अप करेंगे, उनके सामने जैसी बातें करेंगे, जो उनको सिखाएंगे, कल को आपको वही फेस करना पड़ेगा। तो ये एक फेस बहुत बड़ा करना चैलेंज पड़ेगा। है जो मेरे ख्याल में आजकल की जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है स्पेशली, ये वहाँ पे चल रहा है। चल रहा है, और वो बच्चों को देखें, आप बच्चों के माइंड को उस वक्त नहीं समझा सकते बिकॉज दे आर इन दैट वो टीनेज, और उन पे वो एक वो कहीं ना कि जवानी का भूत सवार होता है कि हम तो जो करेंगे वो ठीक होगा, हम जो कहेंगे वो ठीक होगा, हमें तो सब पता है, हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो सच स्टूडेंट्स इफ आर नॉट गाइडेड वेल, वो हम्म। अपने भी सगे नहीं होते थे। हम्म। उनको अपना आप कैरी नहीं करना आता, उनको अपनी रिस्पेक्ट करवानी नहीं आती। हम्म। हम्म। ये ये एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को माइंड में रखने चाहिए कि आप जब बच्चे को किसी बात पे इनकरेज कर रहे हो, स्पेशली इफ इट्स रिलेटेड टू स्कूल और टीचर्स, हम्म। व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट थिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्वेस्टिगेट थोड़ा सा कर लें, तो उसके बाद टीचर्स आर नॉट अलाउड टू हिट। फिजिकल हम्म। अब्यूज या फिजिकल पनिशमेंट तो है ही नहीं ना, सिरे से ही हाँ नहीं है। हाँ, इवन वो। हमारे टाइम पे नहीं थी, आई रिमेम्बर हम्म। हमारे टाइम पे भी नहीं थी। बट स्टिल जो आप अब उनको घर में माहौल दे रहे हो, आपने हर बच्चे के हाथ में फोन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है किस्म किस्म का, हम्म। आप जितने बच्चे पैसे मांगते हैं, यू जस्ट प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग, यू डू टेक देम टू वेकेशन, बट हम्म। उससे उनके सोसाइटी में उठने बैठने में क्या फर्क पड़ रहा है, वो किस हम्म। किस्म की सोसाइटी में उठ बैठ रहे हैं, किस हम्म। तरह की फ्रेंड्स की आपस में चैट्स हो रही हैं, दे नीड टू हैव अ चेक ऑन दिस। एब्सोल्युटली, आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि ये चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी और की वजह से कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बच्चों की एक्सेस इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा हो गई है। मगर एक एज है जिसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए, और एक हम्म, एज है जिस तक उनको थोड़ा कुछ तरीके से बात पता चलनी चाहिए, ताकि बात उसकी है। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। हम्म, कैरेक्टर की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको गलत और सही की पहचान ना, आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस. It could be very, very tricky and dicey हम्म, for everybody around them, not only parents, but the society in which they are going to mingle. If they don't know yes, what is right from the wrong, they are going to, take that particular lesson which they have watched. wrong, yes, Yes, exactly. and this is, I think, which is, it's a very thin balance, and this is being corrupted and disrupted because of the unchecked access to a lot of Exposure, yes. platforms at a very young age, जिसकी वजह हम्म, से मेरे ख्याल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स स्पेशली, बहुत से फ्रंट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। true. तो तो मनाल, आप माशाल्लाह आपने हर चीज़ बड़े पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में चलाई है, और अपनी नेगेटिविटी को बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ चैनलाइज किया है, और आज माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव एक स्टेज पे खड़े हैं कि जहाँ पे आपने माशाल्लाह ऐसा नेक्सस डेवलप कर लिया है कि आपने मास्टर्स जियोलॉजी में किया, ठीक है, और उसके बाद आपने एक क्रिएटिव काम की तरफ अपनी एनर्जीज लगाई, आप टीचिंग कर रही हैं माशाल्लाह, और घर होम मेकर हैं। तो हाउ डू यू क्रिएट द बैलेंस in maintaining all of it together? What is keeping you Uh, together actually? Sometimes I also go insane.
I lose my patience as well. Absolutely. That's natural. Yeah. Thank you Everybody for being goes honest. through it. Absolutely. Thank you for There are being so days, honest. yes, Yeah. there are days when I don't want to talk to anybody. I don't want Right. to see anybody. I Ab- don't even want to wash my face. There oh, are days yeah. And it comes. कि कभी कभी मतलब it's sort of depression sometimes Yeah. कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना, बाहर में जाए सब. I don't care about anybody. Absolutely. But if you keep on allowing that negativity to uh, absorb in you every time, Hmm. and you do not let any kind of positivity surround you, तो फिर आप उसके अंदर धंसते चले जाते हो Hmm. and you fall into an endless pit. तो Absolutely. मैनेज करना मेरे लिए शुरू में था वाकई बहुत चैलेंजिंग था, अभी भी समटाइम्स हो जाता है Hmm. because under certain unexpected circumstances Hmm. Hmm. you need to suddenly change your plans, you need to Hmm. suddenly change your strategies for certain things. बिल्कुल. मैंने अपने आप को ग्रूम इस तरह किया that I have studied Robin Sharma a lot. अच्छा, nice. हाँ, Good. मैंने रॉबिन शर्मा की बुक्स बहुत पढ़ी हैं and they have changed me. They have brought this positive change in me कि कुछ भी हो जाए, it's okay. Hmm. If bad times have passed, the good times will also not stay and vice versa. वो Right. जैसे कहते हैं ना कि there are always rainbows after rain या कुछ इस तरह करके. Absolutely, तो yes. ये चीज थोड़ी ना अब मैं समझने लग गई हूँ काफी हद तक कि हर बुरा वक्त नहीं रहता, हर अच्छा वक्त नहीं रहता. And you have to cope with everything in life. Not everybody is going to stay. Hmm. और एक जो और बात थी कि मैं किसी को ना नहीं कर सकती थी, Hmm. तो वो एक एडेड प्रेशर था मेरी पर्सनालिटी पे कि अगर मैंने किसी को ना कर दी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, Hmm. वो मुझे जज करेगा. Hmm. मैं अगर किसी को मना कर दूंगी तो आइंदा वो मुझसे बात नहीं करेगा. मुझे ये एक डीप डाउन इनसाइड ना एक खौफ था, फियर था मुझे. बट बिल्कुल. ग्रेजुअली आई हैव ओवरकम दिस एज वेल कि मैं Hmm. अगर किसी को ना कहती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के ना कहती हूँ कि इट्स नॉट अफेक्टिंग माई ओन सैनिटी Hmm. आइदर इन केस ऑफ यस और नो. मैं अपनी सैनिटी पे अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. बिल्कुल जबरदस्त. दैट्स वन थिंग फॉर श्योर नाउ. तो आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट किया कि हमारी जो आज की गुफ्तगू भी थी उसका टॉपिक था जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और हम सब ने आज से 10 साल पहले अगर हम अपना इफ वी लुक बैक आई डोंट थिंक वी वर हु वी आर राइट नाउ. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है इसमें आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बुक्स का भी बहुत बड़ा जहाँ एक्सपीरियंसेस इंसान को शेप करते हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस आपको पुश करते हैं टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ. वहाँ पे बुक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ये एक आर्ट है जो डाइंग है बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ रीड बुक्स. बुक्स खरीदने का भी हमारे टाइम में हमारे चाइल्डहुड में सबसे बड़ा गिफ्ट होता था. अच्छा ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो हम आपको फलां किताब खरीद देंगे. लेकिन अब ऐसी वाली कोई एटीट्यूड नहीं रह गए. सो आपने जो अपना जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र शुरू किया है, आप इस चीज जितनी बात आपने करी है उसमें अगर मैं इस चीज़ को कोश करूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी हम सब का स्टार्ट होता है वो तब होता है कि जब हमारे दिल और दिमाग दोनों में कोई चीज़ इम्प्रेशन, कोई चीज़, किसी की बात वो बैठ जाती है और वो हमें डिफरेंट तरीके से या तो सपोर्ट करती है, हमारे दिल को सुकून आ जाता है, या हमें कोई हमारे दिमाग को नई तरीके से सोचने का मौका मिल जाता है. सो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी फ्रॉम अ वेरी somebody who was easily influenced to somebody who now knows when to say no and how to say no. तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में बुक्स के अलावा किस चीज़ ने रोल प्ले किया? I would say कि people used to take advantage of my silence sometimes. और जैसे कहे ना कि अगर मैं किसी को कुछ कहती नहीं थी तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो हमें आइंदा भी कुछ नहीं कहेगी. तो लोग मेरी इस चीज का एक गलत फायदा उठाते थे and they used to exploit me even during my professional life. उठाते थे. हाँ, even during my professional life. तो इस चीज ने मुझे जो है वो थोड़ा प्रॉम्प्ट दिया that no, there has to be a limit for everyone. आप एक स्पंज को प्रेस कर सकते हो लेकिन एक हद तक प्रेस कर सकते हो, not more than that. There has to be
a time when you have to say to stop to everything. That was one thing. और अगर अगर कभी अगर आपको ये इस सवाल का जवाब देना पड़े कि were there any failures, any challenges, I won't say failures, I would say any challenges that help you shape your thoughts, can you recall any? कोई ऐसे failures, ऐसी बातें um, कभी किसी ने ये कहा होगा ये तो तुम कर ही नहीं सकती लेकिन आपने कर लिया हो? हाँ, काफी लोग हैं. इसका मतलब है हाँ, हमारी मेरी और आप जैसी स्टोरीज हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो जिंदगी अभी तक गुजरी उसमें कई दफा हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ा, ऐसी मिलना पड़ा है, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल. से गुजरना पड़ा जिसमें लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये तो आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं नहीं कर है, सकते. लेकिन आपको रियलाइज हुआ उनकी बात से कि नहीं दिस इज समथिंग आई कैन एब्सोल्युटली लुक एट एंड डू। और फिर यस. हमको काफी सारी बेशक प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में जब आपको नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, व्हेन यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इट इज नॉट इजी एट ऑल, the process of transformation and positivity is It's not absolutely not easy. easy. Yes. It's absolutely, or it And does. it's like you're alone in the whole world when Yes, you are undergoing that transformation. आपको ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा कि शायद हम एक बंद गली की तरफ चल रहे हैं और वो यू फील सो क्लस्टर्ड एंड क्लास्ट्रोफोबिक कि समटाइम्स जो आपकी पॉजिटिविटी है वो आप लाना भी चाहें तो वो नहीं आ रही होती। नहीं आती. तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द सिचुएशन एज सच बट समथिंग दैट प्रॉम्प्टेड यू टू राइज अबव दैट particular particular challenge that was thrown at your face and you did rise above. सबसे पहले तो मैं कहूँगी जब when I started working, I was appointed as an Urdu teacher Right. because एक तो मेरा experience नहीं था. I was very fresh as a teacher. Okay. और उसके बाद being a science specialist, I asked for science subject to teach, but I wasn't trusted with it. And वो एक moment था when I was very shattered कि I am a science person and how come am I not trusted to teach science. फिर उसके बाद a lot of struggle, लेकिन फिर मुझे जब 2 साल के बाद साइंस पढ़ाने का मौका मिला तब भी काफी ऐसे मेरी ही प्रोफेशनल फील्ड में थे लोग जिन्होंने मुझे काफी अंडर एस्टिमेट किया. दे ट्राइड टू पुल मी डाउन. और बस फिर तब मैंने ठान ली थी कि नहीं, इफ आई एम गोइंग टू डू इट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. Oh, एंड that's सेम गोस फॉर माय क्राफ्ट कि अब नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब मैं करूंगी. मैंने गलतियां की क्राफ्ट में, मैंने काफी गलतियां की. कुछ थोड़ी सी अनएथिकल भी हो गई थी because I was new in this industry then. So I learned from the mistakes. I got to know कि लोग कैसे हैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में भी लोग कैसे हैं. How do I have to deal with them in future? किसको कितनी लिमिट देनी है बात करने की, किसको बात करने बिल्कुल नहीं देना है, या किसकी एडवाइस लेनी है, किस तरह की एडवाइस लेनी है, या किसी से मिलना जुलना है तो आपने उनको कैसे अप्रोच करना है. तो दिस वाज द थिंग. बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि दुनिया के जब हम एक्सपीरियंसेस करते हैं स्पेशली हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम डील करते हैं तो हमें खुद अपना बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। कोई हमें रूम तो नहीं देगा लेकिन हमें खुद अपनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन एट सर्टेन स्टेजेस बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन सैनिटी एंड आवर ओन आइडेंटिटी। हमारी अपनी आइडेंटिटी भी उसमें फिर वो लेकिन कि आप इतना गुस्से में रहने लग जाते हैं, झुंझले रहने जाते हैं कि वो आपको फिर समझ नहीं आता कभी कभार वैसे एक्ट नहीं करना चाहते लेकिन फिर क्योंकि गुस्सा पेंटअप होता है तो वो गलत मौके पे बातें निकल जाती हैं और फिर आप रिग्रेट करते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए प्रोफेशनल और इवन इफ एट योर होम there are times when you need to tell the other person that there are boundaries that they need to respect. Otherwise it's not going to remain easy task to create a balance in one's professional personal life. तो बिलाल आपने ये जो बात करी है कि आपको खुद देखना पड़ता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो बडिंग आर्टिस्ट है आप उनके लिए फिर क्या मैसेज होगा आपका, आपकी आपकी सारी एक्सपीरियंसेस से, आपकी सारी स्ट्रगल से जो आपने अपने क्राफ्ट को क्रिएट करने में लगाई है। आप मैंने देखा है आपने यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स डाले में डिफरेंट चीज़ों से बारे में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेन भी करने की कोशिश कर रही हैं।
कि वो आपके ट्यूटोरियल्स देखें और उससे जो है वो सीख लें, खुद ब खुद घर में बैठ के उससे इंस्पिरेशन लें। सो बडिंग आर्टिस्ट के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि एक तो ये कि उन्होंने अपने क्राफ्ट के लिए एफर्ट लगानी, नेचुरली आइडियाज हैं, उनको सेल करने का तरीका आना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स सही प्लेटफॉर्म्स के साथ उनको अटैच होना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग थोड़ी सी बिजनेस सेंस डेवलप करनी पाए। लेकिन ये जो बिहेवियर आपने बात की है, जिस सोसाइटी में हमने जाके ये चीज़ों को अपने मार्केट करना है, उस सोसाइटी से आपका भी इंट्रैक्शन हुआ और आपको बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने पड़े लोगों के, इस कॉन्टेक्स्ट में आप उनको कैसे कहेंगे कि जो यंग बच्चे क्राफ्ट क्रिएट कर रहे हैं वो अपना भी लोगों के साथ ये जो बैलेंस है डीलिंग का, वो कैसे क्रिएट करें? I would suggest them कि if somebody criticizes you, you have to keep on moving. Do not stop if somebody says you something, or even if somebody straight away asks you to stop. No, don't. Be persistent. Politely say no. Do not be harsh, हम्म because at the end of the day, it's all about your akhlaq. आप अपने अच्छे अखलाक के साथ लोगों को मना करो। आप कोई काम नहीं कर सकते, टेल देम, आस्क फॉर टाइम, और आप उनको पोलाइटली मना कर दो कि नहीं भाई हम आपको ये चीज इतने में नहीं दे सकते, लेकिन डू नॉट स्टॉप, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू लव, एंड डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। आप किसी मजबूरी में किसी काम को नहीं करो। अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डू नॉट। I would suggest follow your passion. फॉलो योर पैशन, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात करी है। और ये जो बात आपने की है कि लोगों के साथ अपना बैलेंस खुद फाइंड आउट करें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ये सीखें कि उनके साथ बात कैसे करनी है। यही चीज़ तो बहुत ज़्यादा मैंने फेसबुक के डिफरेंट पेजेस में देखी है। वो ये होती है कि वो जो चैट्स हुई होती है उनके स्क्रीनशॉट लोग जो हैं वो लगा रहे होते हैं। Exactly. हाँ. तो वो बहुत ज़्यादा सही बातों पे लगा रहे होते हैं, कोई हरास कर रहा है, कोई गलत बातें कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है जो आई थिंक बीइंग अ वुमन, और अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं या आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारी सोसाइटी में अभी तक ये वाला चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है कि लोग बिला वजह के मैसेजेस भेजते हैं आपको, और बिला वजह की जो है वो आपको एंगेज Exploitation हो जाती है ना आपकी। हाँ. बिल्कुल वो एंगेज करने की कोशिश। तो आई थिंक ये एक एवेन्यू है जिसके ऊपर जो जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो का मैंने देखा है बहुत वोकल भी हैं कि ये बिल्कुल. इनको रोकने का तरीका होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, देयर आर वेज दैट यू कैन डील विद इट। बट वो वही बात है कि कुछ देयर आर सम डेज व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड एंड हाँ. दे आर Also, ब्लूम हाँ. इन योर फेस इन I अ would वे। suggest, हाँ. I would suggest to be with like-minded people, राइट। and just gently come out of the circle of people who are inculcating negativity inside you, or बिल्कुल who are spreading negativity around you. Just बिल्कुल। try and stay with positive people, people who do criticize you, but they हम्म criticize you in the bestest of ways. हम्म देखो, आप बात करने का एक अच्छा तरीका होता है, एक बुरा तरीका होता है। हम्म बुरे तरीके से बात करोगे तो it's going to hurt the other person, it's not going to create any positive change. हम्म But the same thing, if said in a good way or good manner or politely, can create an impact for the whole life. तो हम्म। अब नेगेटिविटी से बाहर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और चूंकि मनाल आप खुद टेक्नोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल करती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत यूज़ करती हैं अपने काम को प्रमोट करने के लिए या नेटवर्किंग के लिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस नेटवर्किंग है वो एक स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है या जो बडिंग बिजनेसेस हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है अपने काम को प्रमोट करने के लिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप हर किसी के वर्ड ऑफ माउथ नहीं बन सकते। सो व्हेन यू attend certain meetings or go to certain seminars or any get togethers etc, मतलब अब तो काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया है ये, it's just not happening due to the pandemic, but before that ये काफी ज्यादा हो रहा था। गेट टुगेदर्स हो रहे थे हर जितने भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफी सारे ग्रुप्स हैं, नॉट इवन इफ दे आर फॉर बिजनेस वुमेन, इवन अदर ग्रुप्स भी, जब ये ब्लॉगर्स से बहुत ज्यादा मीटअप्स होते हैं, तो यू गो, you
interact with other people, you get to learn something, you give them a piece of learning as well. Yes. वहाँ पे जब आप networking करते हो तो it does become the word of mouth. When you have, अच्छा एक और जो trend है ना जो यहाँ पाकिस्तान में अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, that is of the swapping. If you swap your product with somebody else's product, आपको एक चीज की क्वालिटी का आइडिया हो जाता है. आपको in future you remember that person. Absolutely. कि फलाने शख्स ने मुझे इस टाइम पे ये दिया था. एक अच्छा जेस्चर भी होता है, प्लस आपका एक लिंक बन जाता है, आपका नेटवर्क डेवलप होता है. So this is very important. Or being shy in such meetups, or not being vocal, or not being out on the edge and कोने में फिर एक जगह बैठे रहना is not going to help anybody. You have to be out there, you have to express yourself, you have to show your product. आपकी नेटवर्किंग इससे बहुत अच्छी होती है, and then it becomes a source for future links as well. आपको orders आते हैं out of nowhere. And that person is a sort of a connection between you and the third party sometimes. तो आप ये कह रही हैं कि वो जो गिफ्ट्स होते हैं छोटे से, जो आप अपने डिफरेंट तो टेक अवे गिफ्ट्स होते हैं जो आप टोकन्स के तौर पे, सोवेनियर्स के तौर पे लोगों को देते हैं. तो जब आप अगर कोई यंग बडिंग लोग हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कैरी करें अपने इस तरह के जो टोकन्स हैं और उनको एक्सचेंज करें ऐसे जगहों पे, ताकि along with the business card and all the business details. तो मनाल, आप जो YouTube रन कर रही हैं, आपके ख्याल में YouTube भी रोल प्ले कर सकता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग में? Yes, definitely. Because if I am making an album, for example, I am going to show pictures to somebody. But YouTube is a platform where I can show that same album in a very different and better way. I can make a video of that album and then upload it. I can explain how you can put in pockets, how you can open and close the interactions in this album, how you can further make it more beautiful. Because sometimes ऐसे होते हैं जो customized albums होती हैं, I do not paste all the embellishments inside it. Because every customer has different requirements कि हमने यहाँ पे picture लगानी है, फिर हमने उसके साथ ये एक memento जो है वो paste करना है. So sometimes I just put all the embellishments separately and give it away with the album or the order which I have received. So it becomes easy for me to explain कि आप इस चीज को इस तरह भी use कर सकते हो. There is not only one possibility or hard and fast rule कि आपने इसको ऐसे ही करना है या ये चीज ऐसी ही है. There are so many ways no to do. Yes. Creativity की कोई लिमिट नहीं है और हर एक अपना हिसाब से उसको ऑल्टर कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. And YouTube has been a source of a lot of inspiration for many of us. Yeah. Not only for crafters, but for cooking, for sewing, for हर तरह के ट्यूटोरियल है. It's a free platform for learning. अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये ऑनलाइन सेशन कैसे करना था, इसको कैसे लिंक करना है, ये मैंने ट्यूटोरियल से सीखा सारा कुछ. और ये लर्निंग है ना, आप किसी की लर्निंग को रोक तो नहीं सकते या किसी की लर्निंग को लिमिट तो नहीं कर सकते. लेकिन आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जो लोग अभी अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है एक तो टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी फेमिलियरिटी लें. जब भी नेटवर्किंग का मौका मिले वो नेटवर्किंग करें. और अपने जो ये आपने जिक्र किया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टा का आपने जिक्र किया. आर यू ऑन इंस्टा? यस, आई एम. तो अगर आपको इंस्टा और यूट्यूब इनमें से किसी एक को चूज करना पड़े, आपको ज्यादा रिस्पांस कहाँ मिलता है एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट अभी तक तो मुझे इंस्टा पे ज्यादा रिस्पांस मिला है, बिकॉज यूट्यूब का चैनल मैंने स्टार्ट करके उसको दरमियान में रेगुलरली इतना नहीं रन किया. बट नाउ आई हैव बीन मोर रेगुलर ऑन यूट्यूब सिंस पास्ट 3-4 months. राइट. तो अब रिस्पांस है, यूट्यूब पे भी है, बट इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस टिल नाउ, तो इंस्टाग्राम हैज बीन मोर फ्रूटफुल एंड मोर. यंग बच्चे जो हैं उनकी रीच ज्यादा इंस्टा पे है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव वो जो है वो आपको रिस्पांस वहाँ पे ज्यादा अच्छा जनरेट करना आता है. And it is all about a picture. It only takes 3 seconds for you to stop at a picture or go past it. Oh wow. So this is your feed has to be aesthetically really pleasing. Absolutely. ऐसे ये बहुत जबरदस्त मनाल ने बात की है.
कि जो आपका कैची टाइटल है, कैची किस्म की जो आपकी कैप्शन है, वो आपकी ब्रांडिंग में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। और इट हैज़ बीन, ये प्रूवन फैक्ट है कि इट हैज़ प्लेड अ रोल इन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। Customers, yes. ऑडियंस का ये उन्होंने किया हुआ है। मुनाल, अगर आपको आप माशाल्लाह, आप टू यंग एंड देयर सो मेनी इंशाल्लाह कामयाबियां which will come in your way। अगर आपको अपनी बकेट लिस्ट का जिक्र करना पड़े, तो आपकी बकेट लिस्ट में अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंशाल्लाह आप आगे उनको अचीव करेंगी? I want to travel around the world. माशाल्लाह, great, take me along as well, I will want Inshallah. Inshallah. Let's plan a girls trip yeah, soon. absolutely, absolutely, yes। Yes. आप आपके ज़हन में क्यों आया कि आपने ट्रेवल करना है? Because I think traveling is another aspect which is responsible for your personal growth. राइट। You learn about different cultures, you learn about different countries' architecture, their histories. You get to know the people over there in different countries. How are they surviving? What are their norms and rules and regulations? तो आप जब different mindset के लोगों के साथ मिलते बैठते हो, तो you always learn something from them. And the good thing about traveling is that you absorb the nature, Absolutely. which is very therapeutic. Absolutely. Nothing matches the peace which is given by the nature itself. माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू। जितना भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक ट्रैवल किया, कि 9-10 कंट्री अल्लाह ने फिरने का मौका दे दिया, तो उसमें मैंने ये चीज़ बहुत, आपने प्रोफाउंड बात की है कि जो वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस के अलावा जिस तरह से अल्लाह ने इस दुनिया को खूबसूरती दी है, उसको देखना और उससे इंस्पिरेशन लेना आपको वाकई इससे ज़्यादा खूबसूरत मेमोरीज बनाने हम्म, के लिए कोई और जगह नहीं मिल सकती। वो नहीं मिलती बिल्कुल। ऐसे। और ये एवरलास्टिंग मेमोरीज हैं। बिल्कुल, हम्म, ये तो ट्रैवल वाकई कि आपके, वो एक, हाँ, जो नेचर एक आपके माइंड में अब्जॉर्ब होके एक सीनरी बना देती है ना, दैट नेवर गोज आउट ऑफ योर माइंड। स्पेशली एक आर्टिस्ट के लिए तो ये इन चीज़ों में बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा। ये उनके बैलेंस को क्रिएटिव बैलेंस को क्रिएट यस, करने के लिए अल्लाह मियाँ ने ये एक नेचुरल दैट्स व्हाई फार्मूला दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू विजिट स्विट्जरलैंड। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, 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 डू प्रे फॉर मी। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हो सकता है मैं भी आपके साथ ही चलूं, क्योंकि आई आल्सो वांट टू ठीक हो विजिट गया। दैट प्लेस। तो अच्छा, ये Done. फिलहाल हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और ख़त्म करने को दिल नहीं Same कर रहा। here. जाते जाते आप अपने हमारे ऑडियंस को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, तो यू आर वेरी वेलकम। I would just say that you are the most important human being on this earth for yourself. ज़बरदस्त। Your family is besides you. However, if you are not giving yourself time or you are not taking care of yourself, your immediate family members are the first one to be affected. हम्म। So it is very important for you कि आप अपने आप को टाइम दें, अपनी ग्रूमिंग पे पहले तवज्जो दें, बिल्कुल। because it is not going to be helping in any other way. हम्म। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। वर्क ऑन द पीस ऑफ योर ओन माइंड, वर्क ऑन योर ओन सैनिटी। इफ हम्म। यू वांट टू से नो टू समबडी बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, से नो। हम्म। डू नॉट डू इट अंडर प्रेशर और अंडर कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, या ये बंदा मुझसे बात नहीं करेगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक जो है ना मिथ्स हैं जिनको हमें बर्स्ट करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया कहीं नहीं जा रही, आप भी इधर ही है, वो भी इधर ही है। बहुत ज़बरदस्त आप बात सबसे की है। ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिनाल, आपने इतनी ज़बरदस्त पार्टिंग मैसेज दिया है, जिससे मुझे ख्याल आ रहा है कि हमारी सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजर जाती है पाकिस्तान के अंदर, के लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या पिछले दिनों कहेंगे। जो है वो फेसबुक पे एक मैंने वो देखा कि लोग तो सिर्फ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह जाते यही हैं, कहते हैं, तो वो और कुछ एग्जैक्टली। नहीं करते। तो मैं बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मिनाल। इसी मिनाल के मैसेज के साथ मैं भी अपना प्रोग्राम का एंड करना चाहूँगी। और एक बात जो आज हमने सारी, मिनाल ने जो अभी जिक्र किया पासिंग मैसेज में, उसके साथ एक इशफाक अहमद साहब का एक कोट है, उसको कनेक्ट करती हूँ कि जो शख्स अल्लाह की आवाज़ को अपने दिल से मिला लेता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती।
Wow, beautiful. अल्लाह के साथ That's the दोस्ती most लगाने, important thing. Yes. बिल्कुल हम सबको अल्लाह से दोस्ती लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो तकवा जिसके लिए अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, वो वाला जो एक एतमाद है हमारा अल्लाह की ज़ात के साथ, वो जो अल्लाह बिल्कुल। ताला हमारी सक्सेस के लिए, और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला भी कहता है ना कि मुझसे जो तवक्को रखोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। बिल्कुल, जैसे तो मुझसे हैव गुमान करोगे गुड मैं फेथ वैसे इन ही अल्लाह। करूँगा। बिल्कुल। यस। तो थैंक यू सो मच मिनाल, अल्लाह मियाँ आपको बहुत सक्सेस दे हर तरह की। सेम गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत सी दुआएं आपके अब आपके बिजनेस के लिए और आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। थैंक यू। इन्हीं दुआओं के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और एक और अमेजिंग ह्यूमन बीइंग के इंटरव्यू के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आफ्टर अल्लाह हाफिज।